Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the Students Classes. And today we are going to see expression by lines, by and graph. So आज हम लिखने वाले हैं गणित की expression by lines, by and graph. ओके, यहाँ के फॉर्मेट के बारे में कि कैसे हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी है. So let's get started now. Tile lines, tiles by and tile graph. जितनी भी आपकी 3 टाइल्स हैं एग्जाम में, तो पहली टाइल आपकी अलोन होगी, टाइल्स वाई और टाइल वाई जो है वो आपके पार्टनर के साथ होगी, और टोटल ओवरऑल जो टाइम है इसमें पूरे एक्सप्रेशन में आपको 15 मिनट्स में आपका पूरा एक्सप्रेशन कवर अप होगा. सो 5 मिनट्स यू कैन डिवाइड इन दिस वे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन टाइप टाइम्स. ओके, हाउ इट सीम्स. लेट्स सी हियर. सो ये है आपकी पहली टाइल, टाइल आइंस. सो जिसमें कि जिश और स्टिलन का पार्ट आएगा. आपके पास ये फॉर्मेट होगा. आपने इसी फॉर्मेट में अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम, नाम, alter, age, land which is called your country, Bonot is your living place where you are currently living, and Sprachen that means languages, Beruf is profession, and hobbies hobby. ओके, सो आपको अपना नेम बोलना है, यहाँ पर अपनी एज बतानी है. तो एज आप नॉर्मल एज अपनी जो आप रोल में बता सकते हैं, फिर नॉर्मल गेस राउंड फिगर भी दे सकते हैं. ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ही नंबर बोलना है. दे विल जस्ट चेक इन कि आप कितने अच्छे तरीके से नंबर्स को प्रोनाउंस कर पा रहे हो. नेक्स्ट कम्स आपका लैंड विच मीन्स वेयर यू नीड टू टॉक अबाउट योर कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री यू आर, वो नो जहाँ पर आप रह रहे हैं लिविंग. Sprachen, which is called languages. आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं. Beruf, that's called profession, and hobby, hobby. ओके, जो फ्री टाइम में आप एक्टिविटी अपनी करते हो, तो आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है. Guten Tag, गुड डे. जो भी आपका ग्रीटिंग का टाइम हो रहा है, आप Guten Morgen भी बोल सकते हैं, Guten Abend भी, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप Guten Tag बोलिए. Guten Tag. My name is. My name is. And what is your name? You can write. Suppose your name is Sakshi, so you can write Sakshi. Okay, so you can say Guten Tag, good day. Mein Name ist Sakshi. My name is Sakshi. Und bin ich. And how many years old are you? Suppose you are 20 years old, so you can say Und bin ich 20 Jahre alt. 20 years old. Ich komme aus. And now which country you are coming from. Suppose you are coming from Indian. Okay, the name of your country is India. So you will say Indian. Ich komme aus Indian. I come from India. In moment, instead of saying all the time ich wohne in, you can also say im moment. That means currently where you are living. In moment, wohne ich. Okay, so here the spelling mistake of wohne is there. So this right spelling is this W-O. Achievement. Correcting it here. Just a minute. Yes. So you can write it here. The right spelling, that is W-O-H-E-N. Okay. So in moment, currently I am living where? And then you can mention your place. So in moment, wohne ich in Delhi. Okay, where you are living in Delhi. So simply you can say in moment wohne ich in Delhi. Or suppose you are living in Jaipur, Rajasthan, or any another place, you can write that also. Ich spreche, I speak how many languages? If you speak 2 languages, you can say ich spreche zwei Sprachen. If you speak 3 languages, ich spreche 3 Sprachen. If you don't want to add 2 or 3, you can simply say ich spreche, and how many languages you speak, you can tell. Like suppose you speak Hindi, English, okay, Urdu, and a little bit of German, then you can say etwas Deutsch or ein bisschen Deutsch. Okay, so ich spreche 3 Sprachen. Hindi, English und ein bisschen Deutsch. Ich arbeite nicht. Suppose you are not working, you are a school student or simple student, university student. If you don't have any particular profession,
Then you can say ich arbeite nicht. Then what do you want? Suppose you are a student, you will say ich bin Student, male student. If you are a female student, then you will say ich bin Studentin. Okay? So for the female, अगर आप फीमेल हैं फेमिनिन है तो आप बोलेंगे स्टूडेंटिन, अगर मेल हैं देन स्टूडेंट. ओके, सो ich bin स्टूडेंट और स्टूडेंटिन. एंड आपकी हॉबीज के हैं. माइनर हॉबीज sind. अगर आपके पास मोर देन वन हॉबी है देन यू विल यूज sind फॉर्म. आप वन हॉबी के लिए यूज करेंगे माइन हॉबी इज, बट अगर आपके पास मोर देन वन हॉबी देन यू विल से माइनर हॉबीज sind. माई हॉबीज क्या है आपकी हॉबी, आप बता सकते हैं. कॉकिंग und singen, and singing is my hobby. Okay, so कॉकिंग und singen. एंड लास्ट में आप क्या बोलेंगे, das ist alles, that's all, vielen Dank, many thanks. सो आपको 5 मिनट्स मिलेंगे फर्स्ट राउंड में जहां पर आपको अपना होल इंट्रोडक्शन देना है, एंड एट द एंड आपसे एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राइट, वी इस ईयर हांडी नुमा वो पूछ सकते हैं. व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर, bitte wo buchstabieren Sie Vorname, please spell it out your first name or your last name. So any random question they can ask to you, but remember mostly they used to ask, जनरली वो ज्यादा पूछते हैं कि आप लेटर को इजीली स्पेल आउट कर पाओ. सो प्लीज आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने आपको लेटर के बारे में अच्छे से बताया. ओके, लेटर प्रोनाउंसिएशन. सो आप वहां पर जाके आ बे से रे की प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं. ठीक, सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. सो दैट्स द गुड थिंग. सो आपको बोलते हुए याद रखना है कि आप लेटर को ढंग से प्रोनाउंस कर पाए. सपोज साक्षी अगर किसी का नेम है तो आप ऐसे प्रोनाउंस करेंगे SRA SHE के साक्षी. दैट्स ऑल. अगर किसी ने पूछो मीन्स की अगर टेलीफोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है, हांडी नंबर क्या है, देन आप क्या बोलेंगे, एनी रैंडम नंबर, just open your finger, 10 digit numbers, count it out on your finger and start speaking. Okay, कोई भी 10 digit number आप बोल दीजिए, बिकॉज वो रैंडमली आपका नंबर चेक करना चाहते हैं आप कितने स्पॉन्टेनियसली है नंबर्स को लेके, आपको आते हैं कि नहीं आते हैं. Okay, तो ये है आपका टाइप फर्स्ट. एंड वन मोर थिंग, क्या क्या टिप्स आपको याद रखनी है. पहला, कीप योर आई कांटेक्ट विद द एग्जामिनर. जो भी आपका एग्जाम ले रहा है, ये नहीं कि आप नीचे देख के बोल रहे हैं, जो भी है अपनी शीट में देख के आप बोल रहे हैं, बट एक आई कांटेक्ट आपको रखना है. एंड देन डोंट बी अफ्रेड, प्लीज स्पीक फ्रीली. जितना फ्रीली बोलेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा. और अगर आप ज्यादा नर्वसनेस में बोलेंगे तो आपके पॉइंट्स ही लूज होंगे. एंड टॉक कॉन्फिडेंटली. ओके, सो ये 3 टिप्स आपको हमेशा यूज रखनी है. सो ये था आपका टाइल आइंस. अब हम बात करते हैं टाइल्स वाइव. सो दिस इज योर टाइल्स वाइव. ये मैंने रेंडमली प्रिपेयर किए हैं टाइल्स वाइव. आपको टाइल्स वाइव में थीमा मिलेगा. कोई थीम है जैसे कि लर्निंग. सो लर्निंग थीम से रिलेटेड जो आपके वर्ड है कार्ड के ऊपर, लाइक स्प्राकेन लिखा हुआ है तो आपको स्प्राकेन से ही रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने हैं. Okay, so this is your thema lernen, and the word is on your card, that is a Sprachen. So you need to formulate the question according to your theme and according to your word which you are getting it here. Okay, so Sprachen से related आपको formulation करना है. Let's see. So पहला question है हमारे पास, welche Sprachen sprechen Sie? Okay, so this is your question. Welche Sprachen sprechen Sie? Which languages do you speak? So आप बोल सकते हैं ich lerne, Entschuldigung, आप बोल सकते हैं welche Sprachen sprechen Sie भी बोल सकते हैं, और welche Sprachen lernen Sie? Which languages you are learning? So ich lerne English und Deutsch. बोलते हुए आपको हमेशा याद रखना है आपकी जो verb होगी वो सेकेंड पोजिशन पे होगी. ओके, next is wie viele Sprachen lernen Sie? How many languages do you learn? So ich lerne zwei Sprachen. I am learning 2 languages. Mit wem lernen Sie Sprachen? With whom you are learning the languages? Ich lerne Sprachen with my friend, female friend. That's called Freundin. Okay. So आपको याद रखना है आपके पास एक थीमा आएगा, लाइक टॉपिक है आपका लर्निंग, और जो वर्ड लिखा है कार्ड पे दैट इज स्प्राकेन. सो इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट करनी है. सेम आपको फ्यूचर के रिगार्डिंग Schule, इंटरनेट, लर्नन एंड सो हाउस. नाउ लेट्स सी फर्दर और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं.
सपोज ब्यूशर हमारे पास थीमा है, तो आप ब्यूशर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे? Welcher Bücher lernen Sie? Which books are you learning? So ich lerne Deutsche Bücher. I'm learning German books. Wie oft lernen Sie mit den Büchern? Now ये आप देख रहे हैं दाटू प्लूरल है आपका. So how often do you learn with the books? So ich lerne jeden Tag mit den Büchern. I learn every day with the books. और आप ये भी बोल सकते हैं ich lerne einmal pro Woche mit den Büchern oder Monate, einmal im Monat, monatliche, monthly, and last one is your jährliche, yearly. नाउ नेक्स्ट कम, अगर आपके पास नेक्स्ट कार्ड है और क्वेश्चन है आपके लर्निंग टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज लेरर. सो आप लेरर टीचर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पर? आप टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दी हाइस्ट इहर डॉइच लेरर, हाउ डू यू कॉल योर जर्मन टीचर? सो आप अपने टीचर का नाम बोल सकते हैं, एनी एग्जाम्पल, एनी रेंडम नेम आप बोल सकते हैं, लाइक माइन डॉइच लेरर हाइस्ट have marks, any name. I'm taking marks, so you can say marks. Okay. अगर फीमेल टीचर है तो आप बोलेंगे meine Deutschlehrerin heißt Frau Schmidt. Any name. Wie oft hilft Ihre Lehrerin beim Lernen? You can formulate this question also. How often your teacher helps during learning? So you can say mein Lehrerin hilft mir jeden Tag beim Lernen. Mein teacher helps me every day during learning. And if you are at your home, so Hausa, so what question you can formulate? Wie oft lernen Sie zu Hause? How often you learn at home? Ich lerne jeden Tag zu Hause. I learn every day at home. Wann lernen Sie zu Hause? When you learn at your home? Ich lerne um 9 Uhr zu Hause. I learn 9 o'clock at home. Wie lange lernen Sie zu Hause? How long you learn at your home? Ich lerne 4 Stunden zu Hause. I learn 4 hours at home. सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. सो ओवरऑल बात ये है, अगर आप डब्ल्यू क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो तो आपको पहले अपना डब्ल्यू फ्रॉग वे वॉट डब्ल्यू क्वेश्चन पुट करना है, देन आपका वर्ब आएगा ऑन द सेकंड पोजीशन, देन आपका सब्जेक्ट, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग. ओके. एंड आंसर देते हुए भी आप वन वर्ड या तो वन सिंगल सेंटेंस आप दे सकते हैं, बट विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक. बट अभी आपका A1 लेवल है, सो वी कैन थिंक, बट एग्जामिनेशन में ट्राई कीजिए कि मिस्टेक ना करें. अगर आप प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं लाइक टाइम वर्ड में, तो टाइम के साथ आपको यूज करना है. सो हाउस एट होम यूज करना है तो सो हाउस आप बोलेंगे. डोंट फॉरगेट दिस रूल. Now suppose if you are getting next question with the book section, you can form this. Wann lernen Sie mit den Büchern? How you learn with the books. Ich lerne um 9 Uhr mit den Büchern. I learn 9 o'clock with the books. Ich lerne vormittags. You can say forenoon timing में learn करता हूँ 9 या 13 with the books. Wie lange lernen Sie mit den Büchern? How long you learn with the books? So that is ich lerne 4 Stunden. आप अपना एक नॉर्मल रेंडम गेस दे सकते हैं, 4 hours पढ़ते हैं या 1 hour पढ़ते हैं बुक्स के साथ. So ich lerne 4 Stunden oder eine Stunde mit den Büchern. नेक्स्ट कम, अगर आपके पास कार्ड पे लिखा हुआ है Schule, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? Welche Sprachen lernen Sie in der Schule? Which language you are learning in the school? Ich lerne English und Deutsch in der Schule. I learn English and German in the school. अगर इंटरनेट से रिलेटेड आपको दिख रहा है तो आप क्या क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं? Wie lange lernen Sie in Internet? How long you learn in the from the internet? So you can say ich lerne eine Stunde. I learn 1 hour long in internet. Okay, from the internet. Next question is we oft lernen Sie im Internet. How often you learn with the internet? तो आप कह सकते हैं ich lerne jeden Tag im Internet. I learn every day on the internet or from the internet. Okay. नाउ अब बारी आती है आपकी टाइल ड्राई की, इंस्पिरेशन टाइल ड्राई. सो वहां पर आपके पास किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकते हैं? इंस्पिरेशन टाइल जो ड्राई है वो ओवरऑल पिक्चर राउंड, आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर शो की जाएंगे, आपको पिक्चर को देखना है और रिक्वेस्ट फॉर्म करनी है आपने. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पहले में यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है? रेशनू. रेशनू का मतलब क्या होता है? बिल. द मीनिंग ऑफ द रेशनू इज कॉल्ड बिल.
ठीक है, तो आप बिल के ऊपर क्या रिक्वेस्ट फॉर्म कर सकते हैं? ब्रिंग इन जी नियर बिच रेशनू, प्लीज ब्रिंग फॉर मी व्हाट bill. Then person can reply you, einen moment bitte, one moment please. Okay. Now see the next photo. This is the glass, right? So you can say bring in the near behind glass versus please bring for me a glass of water. So जो आपका another partner होगा वो आपको reply करेगा einen moment bitte, one moment please. Next is mandar here with the nicht rauchen. One is not allowed to smoke here. So आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? इन ऑर्डिनल, ऑल राइट। ओके, सो आप ये रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट आर्म। पोस्ट आर्म्स मीन्स पोस्ट ऑफिस। सो अगर मेरे को पोस्ट ऑफिस के ऊपर कोई रिक्वेस्ट फॉर्म करनी है तो मैं कैसे बोलूंगी? वी कॉमा इश बिटर सुम पोस्ट आर्म, हाउ आई कैन कम टू द पोस्ट ऑफिस? देन द पर्सन कैन से gehen Sie hier geradeaus, wo there is straight. Das Postamt ist links. The post office is on the left side. Okay. Now next is your apple. You can see the picture of apple. How to say apple? We used to call it apple, right? So आप क्या question formulate कर सकते हैं on apple? आप बोल सकते हैं bringen Sie mir bitte einen Apfel. Please bring for me an apple. Einen Moment bitte. One moment please. Okay, so आप ये बोल सकते हैं one moment please. Next is machen Sie die Musik bitte lauter. Now you can see the picture of the radio or something speaker one. Music is coming out. The volume is too loud, no? वॉल्यूम आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम सिग्नल है, मे बी वो बहुत तेजी से बज रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं? Machen Sie die Musik bitte leiser. Leiser means slow. Slow down the volume of the music. So person आपको रिस्पॉन्स दे सकता है इन ऑर्डर टू ऑल राइट। सो ओवरऑल जो हमने टाइल स्वाई देखी या टाइल ड्राई, ये दोनों आपकी पार्टनर्स कन्वर्सेशन होंगी। ओके, पार्टनर के साथ आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ओके, कैजुअल कन्वर्सेशन से भी। तो आप फर्स्ट जो एक्सप्रेशन टाइल स्वाई थी वहां पर आपको क्वेश्चन पूछना है एंड आपका पार्टनर आंसर करेगा, फिर आपका पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंड आपको आंसर करना है। सो दैट्स द क्वेश्चनिंग राउंड। ओके, one person will ask from you and you need to give answer, and another person will ask from you, then you need to give answer. In this way it will go. Last one is your expression dial, right? This is whole picture round जहां पर आपको पिक्चर शो की जाएंगी एंड देन यू हैव टू फॉर्मुलेट योर रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट के लिए आपने A1 लेवल में अपना इम्पेरेटिव देखा है। अगर आपने नहीं देखा है व्हाट इज इम्पेरेटिव क्या होता है, तो आप क्विकली इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए एंड अपना वो वीडियो वॉच कीजिए इम्पेरेटिव टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको उस वीडियो पे आप जा सकते हैं और अपना इम्पेरेटिव रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप इम्पेरेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल एग्जाम में अब क्वेश्चन आता है हमें कितनी पिक्चर शो होंगी, कितने कार्ड्स मिलेंगे। सो ओवरऑल वो एग्जामिनर के ऊपर बात है, कभी कभार वो 2 भी कार्ड्स दे देते हैं, कभी 3 भी। सो इट्स टोटली डिपेंड। इफ दे आर गिविंग यू टू कार्ड्स, सो आपको 2 कार्ड्स के ऊपर फटाफट क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है एंड रिक्वेस्ट व्हाटएवर इट इज। So it's about tile lines or tiles Y or tiles right. It's totally depend on your luck also how many cards you are getting. But majorly 6 card होते हैं overall. But sometimes they used to give you 2 or sometimes 3. It's totally depend. Okay. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है ओवरऑल रीजन। हमने जो एक्सप्रेशन टाइल देखी, एक्सप्रेशन टाइल लाइन्स वाई एंड ब्राइट, ये रैंडम क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव है, जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हीं क्वेश्चंस पे वीडियो आपको मोस्ट दूं, ओके, सर्कुलेट होके आपको उस पे वीडियोस बनाओ एक्सप्रेशन टाइल लाइन्स वाई एंड ब्राइट पे, तो आप मेरे को अपना कमेंट लिख सकते हैं। ओके, और फिर मैं आपके लिए इस पे वर्क करूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद for the more new upcoming videos or new experience classes. Till then, bye bye, peace, ciao, take care everyone. Have a great day.